और देखो एक बार पीवी कुंडू का मॉडल पेपर 1। दिया हुआ है choose the correct alternative. Indian Partnership Act was enacted in 1932. In absence of agreement, the partners are entitled to interest on loan. The maximum number of partners in partnership business is 50. Which of the following account has no closing balance? कौन सा profit and loss appropriation? What will be the annual interest rate of 10% for 1,000 withdrawal at the beginning of each month? तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1000 into 12 into 10 by 100 into 6.5 by 12. Answer will be, है ना? What is the liability of the shareholders? Limited. The source of capital company is all of these. Now, which year a Companies Act is followed? 2013. The nature of interest on loan is a charge against profit. Now, the balance sheet of a company is vertical form. Vertical बोल नहीं कंपनी का horizontal खत्म हो गया है. What is the objective of analysis of financial statement? All of this. What is the ideal current ratio is 2:1. Cash sales is 40,000 of credit sale and total sale is 5,60,000. आंसर होगा 1,60,000. बट इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा. पहले करवाए हैं. टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, यही ना? तो अगर हम देखें तो कैश सेल्स जो है 40 है, किसका? क्रेडिट सेल का. तो टोटल सेल जो 140 के बराबर है. तो 560 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर आ जाएगा 160. कितना आ जाएगा? टोटल सेल दिया हुआ है 10, कैश सेल से 2 लाख, तो माइनस किया तो 8 लाख हो गया. क्या चीज? क्रेडिट सेल. क्लोजिंग डेट दिया 80,000, 8 लाख बाई 80,000. आंसर विल बी 10 टाइम्स, है ना? Actual earned profit minus non-profit is called super profit. Partnership defined under section 4. Interest on drawing is shown in the credit side of real appropriation. Debenture is a loan capital of a business. In ratio analysis, relationship is shown between two numbers in quantitative, है ना? Ratio which indicates the short-term solvency. Short-term solvency पता चलता है liquidity ratios. करेक्ट अल्टरनेटिव मैचिंग द फॉलोइंग, है ना? यहाँ पे मैचिंग करना है. एक चीज तो हमको पता है कि ये जाएगा इसके साथ, है ना? और पीएल एप्रोप्रिएशन किसके साथ सूट करता है? पीएल एनी प्रॉफिट सेकंड फंड, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग. किसमें मैच कर रहा है? 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी. नेचर ऑफ लोन अकाउंट. लोन देखा जाए तो डिवेंचर से डिवेंचर होल्डर देता है, बैंक होल्डर बैंक देता है, क्रेडिट सप्लायर ऑफ गुड्स देता है और एक्सेप्टेंस ये देता है.
वन का सी नंबर, the liquid ratio is 1:1, current ratio is 2:1, net profit ratio is 10% on 6 to 7 times. So one card B, tangible assets. Tangible assets non-current assets है, closing stock current assets है, syndicator current liability, reserve surplus, payable of fund. So one का B, explain the explanation. Agreement is based on the partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस पे बेस पे एग्रीमेंट बनता है. सी नंबर ऑप्शन होगा. द पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. रीजन ये है. गुडविल इज एन इनटेंजिबल और इनविजिबल एसेट्स. गुडविल इज नॉट विजिबल इन बीआरआई, सही है. नॉट टचेबल, सही है. इज विजिबल बट नॉट टचेबल, गलत होगा. गुडविल इज नॉट विजिबल, ये ऐसे है. गुडविल इज नॉट विजिबल एंड नॉट टेंजिबल एसेट्स इन बाई हैंड. दोनों जगह नॉट लगा हुआ है. समझा क्या बोले. सप्लायर ऑफ लोन capital is called creditor of the business, is called lender of or supplier of the capital. जो lender होता है वो supplier of creditor होता है. Statement. Now balance sheet of account prepare under vertical, है ना, because in the companies that this method is mentioned. Statement. High fixed assets turnover ratio is harmful for the firm. ज्यादा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो से क्या होता है कि हम फिक्स एसेट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं. क्या कर रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही. बी नंबर ऑप्शन. मोर यूजफुल ऑफ यूज ऑफ फिक्स एसेट्स डिक्रीजेस द इट्स स्टेबिलिटी. assertion. Profit and loss account is prepared after PL appropriation. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद. गलत बात है ना. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ये सही है. assertion is wrong, reason is right. Goodwill of a firm is treated as fixed assets. Nature of goodwill is same as other assets. ये दोनों ही सेपरेट है एक दूसरे से, है ना. assertion और reason बोथ आर सेपरेट स्टेटमेंट. एक जगह क्या बोल रहा है, एक जगह बोल रहा है कि गुडविल जो है फिक्स एसेट्स है, एक जगह बोल रहा है कि गुडविल जो है अदर एसेट से अलग है. तो दोनों ही एक दूसरे से एकदम डिफर बात कर रहा है. क्या कर रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. assertion. Company entity is internal. इटरनल. इटरनल मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर. लास्टिंग फॉर एवर मैंने लंबे समय तक चलने के लिए. मैंने द बिजनेस इज अनडिफाइंड नाइट पीरियड के लिए क्या करेगा, रन करेगा. ऑन द डेथ ऑफ एनी मेंबर, कोई आदमी अगर मर जाता है तो क्या कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, नहीं. तो assertion is true, नहीं, and reason is false. assertion is true, reason is less stock turnover ratio indicate less wastage of. लेस स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स करता है कि हम कितना कम सेल कर पाए हैं साल भर में, मतलब हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं खराब है. लेस स्टॉक इज मेंटेन. अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम होगा तो स्टॉक कम मेंटेन करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. बोथ assertion and reasons are false. Number in financial statement are not merely a digit. जो नंबर है वो सिर्फ डिजिट नहीं है, हर एक डिजिट जो है अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है. बोथ assertion and reasons are true. चलो इसमें से ट्वेल्थ रखो, हम थोड़ा देर में करते हैं.
चलो एक बात, क्वेश्चन नंबर 35, करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स, सही बात है। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, ये भी सही बात है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज चेंज, ये भी सही बात है। इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन फ्लक्चुएटिंग, ये तो कौन कौन सा सही है? 1 2 3 सही है, 4 गलत है ना? तो आंसर में भी 1 2 3 सही है। The registration of partnership form is optional. If the volume of business is small, risk is become high. False. नहीं, कैपिटल कम है तो रिस्क भी तो कम है, कम है। पार्टनरशिप डेट मे बी वर्बल, ट्रू। डीड में भी रिटर्न ऑफ पर्पस दोनों होता है। द फर्म इज कंट्रोल्ड बाय कंपनीज एक्ट, द फर्म इज कंट्रोल्ड बाय कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट क्या होगा? गुडविल इज एन इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल क्या है? इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इनविजिबल तो है ना? देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉल्स, सही है, गलत है। 1 और 3 सही है, बी होगा। कौन ज्ञान दे रहा है? बाहर में देखो ना, दो ठो लड़का है, बोलो तो क्या बोल रहा है? जल्द मंटू, कभी से परेशान है, बोलो देखो। कम, क्या वो बोलो? हाँ, जाओ लो, लेके आ दो, लेके आ दो। Company's authorized capital is equal to or more than paid up share capital, यहीं से बिजनेस खोल दियो क्या तुम? अगला दिन से बोल दो कि आएगा ना तो यहाँ पे नहीं घूमेगा, वहीं पे बैठा रहेगा एकदम लास्ट तक। ऑथराइज कैप कंपनीज ऑथराइज कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ। पेड अप कैपिटल इज ऑफ इज कंपनीज एक्चुअल कैपिटल, हाँ ये भी सही है। कॉल्ड अप कैपिटल मे बी लार्जर देन इशू कैपिटल, गलत है। इशू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल बिकम ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है ना? एक सी होगा। इन केस ऑफ नो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट डिविडेंड, सही बात है। डिविडेंड इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फॉल्स। इक्विटी शेयर कैन डिलीवर देयर वोट टू बिकम मीटिंग, सही बात है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर डू नॉट गेट इंटरेस्ट, फॉल्स, है ना? बी। करंट रेशियो इक्वल टू करंट माइनस करंट एसेट, बैठ जा निष्ठा, बोल रहे थे, पूछ रहे थे तो मुंह में दही जमा हुआ था तुम्हारा, बता क्यों नहीं रही थी? अनिशा जी, नाक को छो जोर से, सर करने से होगा। फर्नीचर इज वन टाइप ऑफ करेंट एसेट, देखो इसको कहीं भी सावन में बनाया है। आइडल वैल्यू ऑफ करेंट रेशियो इज 2:1, वाह सही बोला। करेंट रेशियो शो द लॉन्ग टर्म, देखो ये कहीं सही है, ये कहीं सही है ना? फिर से अभी बी में कहा? अच्छा,
चलो एक बार रियल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ली जाओ, यही तो आता है। कौन बोला वो भी नहीं आता है? नॉमिनल अकाउंट है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दोनों में खुलता है। हाँ, अरे कैपिटल फिक्स मेथड में दो अकाउंट खुलता है ना, कैपिटल भी खुलता है और करंट भी खुलता है। तो पूछ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल कब खोला जाता है, तो दोनों ही में खुलता है। दोनों रहता है, मतलब दोनों में खुलता है, चाहे जो मेथड यूज करो। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आइदर डेबिट और क्रेडिट। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। The partners dropped 500, 165. ठीक है ना सर? The closing balance of profit and loss application transferred to the closing balance of partners capital या current account. In absence of partnership deed, interest is allowed on partners capital. No interest is allowed. ऑप्शन होगा, ऑप्शन। हाँ श्योर, उसमें टिक कर लेना, हम बताए थे। और देखो एक बार, ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 6.5, 1 का 4, तो 1 का 4 तो इसी में दिख रहा है, और किसी में तो ठीक है। अच्छा फिर भी एंड में रहेगा तो 5.5 है ना। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर रहेगा, बीइंग लिखा है खाली 7.5। चलो ठीक है, यहाँ पे भी गलती है। पार्टनर्स लोन अगर देखा जाए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, तो डी का 3 देखो किसमें है, दो में, ए और बी दोनों में। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग इक्वली है ना, तो सी का 2, तो इस हिसाब से बी होना चाहिए। 1 का 4, यहाँ पे सैलरी ना होके सैलरी होगा, नहीं पार्टनर सैलरी होगा, वो इंटरेस्ट नहीं होके पार्टनर सैलरी होगा, क्योंकि सैलरी के बारे में बोला है यहाँ पे। अब पार्टनर्स लोन जो है, ठीक है, अंडर कैपिटल मेथड, ठीक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा मे बी। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम वेरी फ्रॉम, ऐसी कुछ होगा ये, ठीक से हमको लगता है कि फिर से टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। परिवर्तनशील मूलधन, परिवर्तनशील मूलधन समय समय परिवर्तनशील, हमको आता है पढ़ने, ऐसा नहीं ना कल तुम लोग पंगा पक्ष को लेके आएगा, बोले अरे अपनी यहाँ से नहीं करने लोग नहीं ना। Under fluctuating capital method, all the adjustments such as share of profit, both A and B are correct. A are the correct explanation of assertion and reason, दोनों correct है। अच्छा, salary allowed to a partner is shown in the profit and loss appropriation, ये सही बात है। Salary allowed to the partners when there is a provisions of same in the partnership deed, ये भी सही है। हट डीड में रहेगा तभी ना सैलरी मिलेगा, क्या गलत है इसमें? बोथ आर करेक्ट। If average profit is 3 lakh, normal rate of return is 12%, amount of capital employed is 22 lakh, तो कैसे निकाल सकते हैं? 3 लाख डिवाइडेड बाई 12%, तो आ जाएगा 25 लाख। 25 लाख में से नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख माइनस किए, तो 3 लाख आंसर आएगा। द आंसर विल बी 3 लाख।
What is called the excess of actual profit over normal profit? Actual profit over normal profit is called super profit. Average profit is 15,000. Value of goodwill based on 2 year purchase of normal. देखो यहाँ पे ध्यान से वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है ना, और नॉर्मल प्रॉफिट पर पूछ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो पहले 2 ईयर परचेस को इसे 2 से डिवाइड दिए तो 9,000 आया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 पता है, सुपर प्रॉफिट 9,000 है, तो ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ से ये माइनस हो गया तो 6,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 6,000। The value of goodwill increase with the increase in profit. Companies Act 2013 यही देखो जाता है। ऑल ऑफ दिस कंपनी का फीचर्स क्या है, सब कुछ है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी? एमओए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड मोस्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डैश इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में, है ना। ऑथराइज कैपिटल सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसका अगर हम देखें तो 1 का सी लग रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड शेयर कैपिटल, है ना। रिजर्व कैपिटल का ये बी है, 1 का सी और 4 का बी, 1 का सी और 4 का बी हो गई। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब बता दे रहे इसका सब्सक्राइब का ये होगा लेस देन इक्वल टू अकॉर्ड ऑफ, इसका ये डी होगा, सी 2 का डी, 2 का डी बी होगा। Account which is to be debited on interest on debenture. Interest on debenture account debit to PL या फिर टू कैश है PL। हाँ वेट करो, द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड टू PL होगा, स्टेटमेंट ऑफ PL में चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली क्या बोल रहा है समझो, लेजर खोले, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ना ना, एक मिनट दो मेरे को, एंट्री क्या होगा समझो, एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर एंट्री होगा PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो लेजर खोलेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, है ना, डेबिटेड टू के PL में डेबिटेड क्या होगा, फिर से बोलो, डेबिटेड टू अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही लिखो। ओके डिवेंचर होल्डर, हाँ डिवेंचर होल्डर करो, क्या करो, हाँ हाँ बता दे रहे हैं। एक्चुअली क्या किया समझाते हैं, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ऐसे एंट्री पास कर रहा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें डेबिट में क्या लिखेंगे, टू डिवेंचर होल्डर, क्या लिखेंगे, टू डिवेंचर। हो रहा है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट खोलेंगे तो कौन से अकाउंट को डेबिट किए, डिवेंचर होल्डर। क्या दिया उसमें, देखो कितना नंबर है, सही, हम ही सही बोल रहे थे, छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही होगा। वो एक्चुअली मीनिंग सही से नहीं लिखा है ना, द अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अकाउंट नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना।
फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब दिया जाएगा तब यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट जब बोल रहा है ना तो अकाउंट हमको खोल के देखना पड़ेगा कि उसमें डेबिट क्या हो रहा है। सुन रहा है? एंट्री अभी फिलहाल यही होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर, indicate whether the following statement are true or false. डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर, ट्रू। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। वोटिंग राइट, डू नॉट हैव वोटिंग राइट, सही बात है। बिना कैन नॉट इशू थोड़ी होता है, कैन इशू। ए और सी सही है, बी और डी गलत है। ABC Limited issued 5,000 8% debentures of 100 each at a premium of 10%. दिया है प्रूफ ना बैन। व्हाट अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड टू 8% डिवेंचर, हमेशा फेस वैल्यू। 8% डिवेंचर में कितना अमाउंट पुट करेंगे, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से होता है, 5 लाख। Y Limited purchase machine from Z Limited 5,50,000. The payment was made by the issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 10%. At a premium of डिवेंचर कितना का, फिर से बोलते हैं, हम लोग परचेज किया मशीन 5,50,000 का, पेमेंट कैसे करेंगे, 10% प्रीमियम पे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है, तो 5,50,000 डिवाइड बाई 110, क्या 5510। अरे भाई मेरे, तुम तो गजबे नशा में है। 110 से डिवाइड करेगा तो हाँ 5,000 होगा, 5,50,000 को। इंट्रा फर्म किसको बोलते हैं, जब सेम में होता है तब, ये ए का 2, थोड़ा सा छोटा कर, वर्टिकल एनालिसिस कब बोला जाता है, जब सिंगल फिगर को कंपेयर किया जाता है तब, है ना। दो इंटर फर्म किसको बोला जाता है ना, डी का 3 सब में है। बी का, रुक ना भाई, बी फोर किस में है, बी में। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। Which of the following is not a tools of analysis of the financial statement? Revaluation account. Which of the following is not the limitation of financial statement analysis? लिमिटेशन नहीं है। It identifies the reason for changes. कितना नंबर है बोलो तो, 98 का क्या बोले हम, बोलो तो। सही है। आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1, यही जो आता है। एज पर कंपनीज एक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2013 में बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइप का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करो एक बार। अच्छा, क्रेडिट सेल इज 75% कैश सेल्स। इफ टोटल सेल इज 3,50,000, देन द कैश सेल इज 2 लाख। कैसे आया,
देखो टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल है 75%, किसका? कैश सेल्स का। तो ये 100 है, तो ये हुआ 175। तो 3,50,000 जो है वो 175 के बराबर है। तो 100 का बराबर कितना हो, है ना? तो आएगा 2 लाख। करके देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा फॉल्स? लिक्विडिटी रेशियो यूज्ड टू जजिंग द शॉर्ट टर्म डेब्ट रिपेबल कैपेसिटी, ट्रू, है ना? फिर एफिशिएंसी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म, एफिशिएंसी से लॉन्ग टर्म थोड़ी होता है, फॉल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हाँ, ट्रू। नेट प्रॉफिट रेशियो इज एग्जांपल ऑफ मिक्स रेशियो, फॉल्स। এটা হবে A and C। A नंबर। करंट रेशियो इज 5:3। ये तो बहुत इजी तरीके से हम निकालते हैं, सुनो ऐसे निकालते हैं हम। 5 में से 3 गया तो डिवाइड बाई 2। जो निकालना है, क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाई 3। 1,20,000 3,60,000। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 20 lakh। Fixed assets is 8 lakh. What will be the percentage of fixed assets to total assets? 40%। कैसा है भैया? 8 लाख यानी 20 लाख इंटू 100। 0 से 5 जीरो गया, 20 × 5 = 100। 40। In the statement profit and loss common size, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज में किसको लेते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अज्यूम्ड टू बी 100। सही तो है, ए नंबर। If cash sales is 50,000, credit sale is 4,50,000, cost of goods sold is 4,40,000, the gross profit amount will be, तुम जो 60,000 हो जाएगा। देखो टोटल सेल ये हुआ, टोटल सेल से सीओजीएस माइनस कर देंगे, है ना? टोटल सेल से क्या करेंगे? इसके रेशियो। तो वही बोल पाएगा। अरे देख कितना अच्छा बोल किए, है ना? 5 लाख आया, 5 लाख में से 4,40,000 गया, 5 लाख माइनस 4,40,000 तो 60,000 आया। 60,000 क्या आया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल दैट इज 5 लाख इनटू 100, 12%। 12%, 12% कितना होगा? क्विक एसेट्स इक्वल टू, यही तो वो आता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। एवरेज स्टॉक इज 75,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो based on cost of goods sold is 12. If profit on the sales is 20%, then the value of, देखो एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आता है सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना है? सीओजीएस पता नहीं है ना? ये पता है 12 है और ये है 75,000। ये कितना है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 9 लाख। सीओजीएस आया 9 लाख। यहाँ पे 20% प्रॉफिट ऑन सेल है। प्रॉफिट ऑन सेल है कितना? 20%। तो सेल से ऐसे अगर हम लोग तोड़ दें, क्यों बात हो रहा है? तो सेल पे है 20%, मैंने 20/100 मैंने 1/5, तो इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4, दैट इज 25%। तो इसका 25% निकालो तो इट विल बी लाइक 2,25,000। 2,25,000।
लास्ट the company revenue from operation is 20 lakh, cost from revenue from operation is 14 lakh, indirect expenses 2 lakh. What is the amount of? देखो ये छुच्छे दिया है, इसका कोई काम नहीं है। ऑपरेशन से सीओजीएस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख। डी